Good morning, class 10th. Well, it's another day, and so we have to move on every day. And today we'll be looking at some questions from exercise 17.1. So the very first question that I'll be helping you guys with is question number 12. So I'll start away. Uh, Question number 12 goes something like this. Find the ratio between the total surface area of the cylinder to curved surface area given that its height and radius are 7.5 centimeter and 3.5 centimeter. So I have to find the ratio. So if I have to find the ratio, why shouldn't we write them in ratio? So ratio between total surface area upon curved surface area. Curved surface area, right? So if you guys know the formula of total surface area, I know the formula 2 pi r h plus r. And what about curved surface area? 2 pi r h. This is the formula. So I'm not straight away finding the value of total surface area and then curved surface area. That's going to give me a very big answer. So I'm going to do it in short way. Don't find pele total surface area ka volume and then find the ratio. Don't do that. It's going to take a long time. 2 and 2 can be cancelled. Pi and pi can be cancelled. R and R can be cancelled. Don't say H and H can be cancelled. Why? Because they're in plus sign with plus sign. So what is left with me? H plus R upon H. So I'm going to put the values now. So H की वैल्यू जहां तक मुझे पता है H की वैल्यू है 7.5 प्लस 3.5 upon 7.5. So if you add, it's going to be 11.0 upon 7.5. And if you remove point from here, point goes away. So it's 110 upon 75. And when you cancel them up, it's going to come 5 15s are and 5 22s are. So ratio is 22 ratio 15. This is the ratio between total surface area and curved surface area. Okay, so that's how you find the relation, okay, or the ratio whenever they have asked you to find the ratio. Let's have a look in question number 15. Question number 15 क्या कह रहा है हमें कि the ratio between the curved surface area and the total surface area of a cylinder is 1:2. So I'm going to write the ratio. So ratio they have given me. So ratio between curved surface area upon total surface area is equals to 1 upon 2. 1 upon 2. So you know the formula for curved surface area. What is the formula for curved surface area? The formula for curved surface area is 2 pi r h, right? And total surface area का क्या होता है भाई फॉर्मूला? आप सबको पता है 2 pi r h plus r. But they have given me the answer 1 upon 2. I'm just going with the flow and going with the question. I'm not doing something extra over here. So what you need to understand is कि हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, पहले फॉर्मूला लगा के इसका आंसर ढूंढेंगे फिर इसका. ये सब मत करो, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी. आप सीधा फॉर्मूले में इसमें रखो रेशियो में एंड देन कैंसिल द नंबर्स आउट. 2 2 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, आर आर कैंसिल. सो व्हाट इज लेफ्ट? एच अपॉन एच प्लस आर इक्वल्स टू 1 अपॉन 2. इतना समझ में आया सबको? मुझे वॉल्यूम ढूंढना है, पर वॉल्यूम ढूंढ लेंगे हम, पहले हमारे पास एच और आर तो होना चाहिए भाई साहब. अगर मेरे पास एच और आर है ही नहीं तो हम वॉल्यूम कहां से ढूंढेंगे? तो क्या हो जाएगा? एच 2 इधर चल जाएगा इक्वल्स टू एच प्लस आर. एच प्लस आर उधर चल गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया. एच इधर आता है तो माइनस एच हो जाएगा और इधर आर. तो मुझे एक चीज तो पता लग गया भाई बहनों कि एच इज इक्वल्स टू आर. एच इज इक्वल्स टू आर, ये इधर गया माइनस हुआ तो एच इज इक्वल्स टू आर आ गया मेरे पास. डू यू ऑल एग्री? ओके, सो मुझे एच इक्वल्स टू आर पता लग गया. अब मैंने थोड़ा क्वेश्चन छोड़ दिया था क्योंकि अब हमें गिवन है, गिवन दैट इट्स टोटल सरफेस एरिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब टोटल सरफेस एरिया आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर इक्वल्स टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, इजंट इट? अब मैं क्या करूँगा, एच की जगह भी आर डाल दूंगा.
सो 2 पाई आर प्लस आर इक्वल्स टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आर प्लस आर तो आपको पता है 2 आर हो जाता है, 2 पाई आर इंटू 2 आर इक्वल्स टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप सबको उस तरफ ले जा लो, बस आर को यहाँ छोड़ दो। तो आर को अगर आप यहाँ छोड़ते हो तो मैं पहले वैल्यूज डाल देता हूँ, तब आपके पास उधर छोड़ूंगा। ये इस इधर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। सो 4 into 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, सबको उधर शिफ्ट कर दूंगा और आर स्क्वायर यहाँ छोड़ दूंगा, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 7/4 into 22। तो 4 और 22 इधर आ गया और ये इधर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायर उधर ले जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। 616 इंटू 7/4 into 22। अब ये इजीली कैंसिल हो सकता है, मैं बस इसको क्या करूँगा, आपने इसको मल्टीप्लाई मत करना, बहुत से जन ना इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं बोलूँगा इसको तोड़ दो, 616 को तोड़ दो। कैसे तोड़ सकते हो 616 को, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो ये किससे जा सकता है, अगर आप देखोगे 2 से जा सकता है, 2 3 जा 0 जा, 2 8 जा 16। फिर से 2 से जा सकता है, 2 1 जा, 2 5 जा, 2 4 जा। फिर से 2 से जा सकता है, 2 7 जा एंड 2 7 जा 14। और फिर 7 से और 11 से, ठीक है। अब मैंने तोड़ दिया ना, अब मैं सेम तरीके से यहाँ लिख दूंगा आर इज इक्वल्स टू 616 नहीं लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा 2 into 2 into 7 into 11 into 7/4 into 2 into 11। अब ये 11 और 11 तो कटा, कटा कि नहीं कटा। अब ये 2 और ये वाला 2 भी कटा, और ये 2 और ये 4 भी कटा। अब बचा क्या है मेरे पास, 7 और 7, और ये रूट्स में से बाहर आ सकता है, तो मतलब आर क्या है मेरा 7। अगर आर 7 है तो एच भी 7 आया, आया कि नहीं आया, बिकॉज एच इज इक्वल्स टू आर। अब मुझे वॉल्यूम ढूंढना है। कैन यू सी हाउ बिग दिस क्वेश्चन इज गेटिंग। नाउ आई हैव टू फाइंड वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 22/7 into 7 into 7 into 7। why h is 7, r is also 7, so 7 and 7 get cancelled, 22 into 7 into 7, so 22 into 7 into 7 equals to 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब। ओके, सो दैट्स हाउ यू गेट योर आंसर। मैंने फिर से मैं स्टोरी बता देता हूँ इस क्वेश्चन की क्या हुआ। हमें इसमें रेशियो गिवन था, मुझे आखिरी में पता लगा एच इज इक्वल्स टू आर। तो मैंने जो भी मुझे टोटल सरफेस एरिया गिवन था, मैंने इसमें फॉर्मूला लगा के मैंने आर की वैल्यू ढूंढ ली। तो आर की वैल्यू मेरी 7 आई। अगर आर 7 है तो एच भी 7 है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इक्वल। एंड देन आई गॉट द वॉल्यूम फॉर दिस क्वेश्चन। ओके दोस्तों, हम आप दूसरे क्वेश्चन में आ गए, क्वेश्चन नंबर 18। टेंटन डिक जाऊँ करके। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे। अ सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ द एंड्स मेड ऑफ मेटल। एक ट्यूब बना रखी है। ट्यूब क्या होता है, ऐसे करके ट्यूब होती है, और ये मेटल की बनी है। किस चीज़ की बनी है ये, सही बोला आपने, मेटल की बनी है, ठीक है। अब जब ये मेटल की बना रहे थे लड़के लोग फैक्ट्री में या कंपनी में जाके, तो जो डायमीटर है, द इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज 11.2 सेंटीमीटर। मतलब जो ये डायमीटर है, ये पूरा अंदर का डायमीटर 11.2 सेंटीमीटर है। पर मुझे डायमीटर पता है इंटरनल, तो मैं इंटरनल रेडियस ढूंढूंगा। इंटरनल रेडियस इक्वल्स टू 11.2/2, दैट इज गोइंग टू बी 11, 2 1 2, 2 5 10, 5.6, ठीक है। तो 5.6 सेंटीमीटर मेरा इंटरनल रेडियस आ गया, ये 5.6 है इंटरनल रेडियस। एंड द लेंथ इज 21 सेंटीमीटर, मतलब इसकी 21 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है भाई साहब, ऐसे करेंगे। ये 21 सेंटीमीटर, मतलब मैं हाइट क्या ले रहा हूँ, HEIGHT
इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को? ओके। और जो थिकनेस है, मतलब ये थिकनेस है जो, वो 0.4 सेंटीमीटर है। तो मतलब एक्सटर्नल रेडियस भी पता लग गया मुझे। एक्सटर्नल रेडियस जो होगा, आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ड्राइंग करके बता रहा हूँ। ये तो 5.6 है और ये 0.4 है, समझ आ रहा है? तो 5.6 प्लस 0.4 कितना हो जाएगा आपके पास? एक्सटर्नल रेडियस बन जाएगा पूरा, तो ये बन जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितना बन जाएगा? 6 सेंटीमीटर। वेरी गुड, सही कहा आपने। ओके, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मेटल। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम हमने सीखा था, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग? पाई फिर आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर, आर स्मॉल आर क्यूब। ओके, क्योंकि आपका पूरा, और एच भी बाहर आएगा। ओके, पाई एच बाहर आएगा और आर क्यूब माइनस आर। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पाई तो मुझे पता है, दैट इज 22/7, इंटू एच भी आपको पता है 21, और आर क्यूब क्या है, मतलब ये एक्सटर्नल रेडियस है, ये है 6 का क्यूब माइनस ये 5.6 का क्यूब। ओके, अब मैं इसको कैंसिल करके, इधर तो 7 3 ज़र होता है, ये हो जाएगा आपका 66। अभी 6 6 ज़र 36 इंटू 6 इक्वल्स टू 216, ये 216 आ गया आपका। माइनस करेंगे 5.6, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5.6 इंटू 5.6 इंटू 5.6, और मेरा आंसर जो आएगा, ये आएगा 175.6। ओके, और फिर मैं इसको माइनस कर दूंगा, किससे? 216 से, 216 से। तो व्हाट विल आई बी गेटिंग? 40.3, 66 into 40.3, and then multiply them and you'll get your answer. So आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2665.3, something like that. Okay, approx of this. So but you have to find the volume, and volume का फॉर्मूला बहुत इजी होता है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला डालना है और आपको पता लग जाएगा ट्यूब की वॉल्यूम क्या है। ऑल राइट, आई होप यू guys are getting this. Are you? Okay, thank you so much for watching this video. I hope you understood. I just wanted to do 3 questions for you out of 10 questions, and I think rest 7 questions you will be doing it on your own. Thank you so much for watching this video. Have a great day everyone.